हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ईशान प्रखर कॉन्वर्सेशन पार्ट 6। लेट्स Around the 1500s, let's just go 500 years ago, Renaissance is happening. Europe is rediscovering its culture. Europe is like, oh my God, right? But more individually, nobody's seen the world. The great voyages of the 16th and the 17th and the 18th century are about to happen, where the Dutch, the French, the Portuguese, the English, somewhat the Germans, all get on ships, the Spanish, all get on ships and go out and explore the world. The new world, which is North America and South America, is found this time. It is found. It's called Newfoundland. I think one of the places in Greenland is called that. The point is, this is the moment in history where first they rediscover their own spirit. After the plague, the Black Plague or something that happens in Europe that wipes out 1/3 of the population, उनकी सारी हिस्ट्री मर जाती है, फिर वो रीडिस्कवर करते हैं, आर्ट वार्ट करते हैं. 17वीं 18वीं सदी तक वो आके एक लेवल ऑफ सेटलमेंट करने के लिए बाहर निकलते हैं. ट्रेड शुरू होती है, मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स इंटरकनेक्टेडनेस बिगिंस देयर. देन all of the 19th century is spent on acquiring and trading territories. So South America gets acquired by the Spanish and the Portuguese, somewhat the Dutch. North America is a Dutch territory and an English territory, right? India is a British colony. Parts of China, Britain is trading with. Indonesia is something. Africa is Francophile and Anglophile. All of this is happening. This results in the First World War in 1914 to 1919, I think. That's the First World War. So, up until इसको भी आगे ले जाते हैं. After the First World War, there's temporary peace. And then there's a Second World War. After the Second World War, there is a de facto war, which is the Cold War. That ends up until the 1991. 1991 is also incidentally when India opens up. Liberalization. And it's also the moment when South Africa gets free, 1994 or something. So the effects of colonization, which began after the Renaissance, which began after the Black Plague, which began after the Christian Crusades, and so on, ends up in the early 2000s. And it ends up with this event called the Y2K, which is the birth of the computer and the fusing of everything and all information around the world. Chuck Palahniuk is writing around this time, where he says that all great movements in history have come to somewhat a close. There is another person who's talking about some version of this. Actually, there are two people who are... कर लो. मेरे को मेरी आवाज़ आएगी फिर मैं awkward हो जाऊंगा. अच्छा लगता है सुनना खुद की आवाज़? नहीं, हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे बात करते हुए तो मुझे weird लगता है, पता नहीं क्यों. Hold that question. So there are two people who are talking about the end of history as a phenomenon. Sorry, this is a little long-winded, but you need to completely understand the intellectual context behind this. Friedrich Hegel. I think so. Friedrich Hegel is a German idealist philosopher that predates Karl Marx and communism, who gives the concept of the movement of history till the point history is completed. And he says history is completed, or Marx says history is completed when all people have achieved social and economic liberation. But Hegel says history is complete when all people have achieved spiritual or Geist. Geist is the German word for spirit liberation. Friedrich नहीं, एक हायक करके बंदा है शायद, फ्रेडरिक हायक है, पता नहीं, I'm confusing first names. Hayek is also a thinker who's speaking of this in economic terms. So end of history is around, and a lot of people have spoken about it. And we see this with the fall of the Soviet Russia, that the world becomes a unipolar world. And America is in dominance and all wars are settled. And suddenly we arrive after a great movement of 1,000 years into this moment where suddenly there is no macro cultural or macroeconomic forces at play, except capitalism and consumerism. Now everything will make sense. So we are the middle children of history. We exist between two wars. We don't have any great wars to fight. There are no great depressions. ऐसा नहीं हो रहा कि black plague चल रहा है या economic depression चल रहा है. We have none of that. Our great war is a spiritual war. Because through this 1,000-year motion of end of history, we've arrived at a place where our spirit is lost. We don't know who we are. We don't understand who we are. Our Great Depression is a... क्या बोलता है? What is the last line? Our Great Depression is a... Is our lives. Is our lives. So our Great Depression is the fact that we are alive. And all of this, and if you look at the broader theme of Fight Club, it's about consumerism. वो क्या नाम है उसका? Edward, who's the main guy?
एडवर्ड समथिंग उसका, मैं आई फॉरगेट हिज नेम, द मेन कैरेक्टर जिसका ऑल्टर ईगो ब्रैड पिट है, वो पिक्चर शुरू कहाँ से होती है? हग रहा होता है आइकिया और कैटलॉग देख रहा होता है, कंज्यूमिंग एंड द ऑल्टर ईगो ऑफ दिस गाय ब्रेक्स हिम आउट एंड सेज ये कंजम्पशनिस्ट माइंडसेट से वापस बायोलॉजिकल रूट्स पे आप फिगर आउट हु यू ट्रूली आर, एंड हु यू ट्रूली आर इज द ऑल सीइंग ऑल नोइंग शिट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके कुछ एक लाइन है ऐसी मूवी में, यू आर द ऑल डांसिंग ऑल सिंगिंग क्रैप ऑफ दिस वर्ल्ड, आई थिंक ये लाइन है, चेक कर लियो, ठीक है? एंड सो द एंटायर मूवी इज अ कमिंग बैक टू योर रूट्स kind of a phenomena for men, and all of it begins with violence as far as Chuck Palahniuk is concerned. So this is what it means कि we are without macro cultural macro economic forces that drive the direction of our life. So we are left to our own devices, and so our life has become depressive. The only war we are left with is the one within. That is what he's saying. आया समझ में? हाँ, बहुत लंबा है, बहुत लंबे। मजेदार है। हाँ। But what is next? How do we survive? How do we win this war? You are getting into spiritual sensibilities again. You want to get into that? Time नहीं अपने पास। नहीं, time का कोई issue नहीं है. But effectively you stop fighting. You stop wrestling. Right. You wake up. I gave you the answer a little while ago. You realize you're about to die. See, the reason why this might resonate with the male part of you but not with the Indian part of you is because the Indian cultural unconscious, which is the Indian background of behavior, has nothing to do with this. The Indian mind has been awake to spiritual doors forever. Right. And throughout this 1,000-year period, all India is saying is that you're about to die. You're about to die. Wake up. So this is what I meant also when I said Americans don't get spirituality. They consume spirituality. Right? To win the spiritual war, you realize there's nothing to fight. There's only waking up to do. And the way you wake up is by realizing the eternal truth of impermanence. And once you realize that, not intellectually, inside your body, once you see actually हाँ सब impermanent है और इसीलिए खूबसूरत है, फिर बागों में तितलियां सुंदर लगने लगती हैं, गानों में धुन समझ आने लगती है, नाचने में थिरकने में दिक्कत नहीं होती, फिर दिक्कत नहीं होती, फिर कोई वॉर नहीं रह जाती, फिर कभी वॉर थी ही नहीं, फिर वॉर वो झूठ था जो मैंने खुद को बोल दिया था, फिर वॉर एक मेटाफर था उसको समझाने के लिए जिसको वॉर के मेटाफर समझ आते हैं, फिर ये सारी बातें हैं, फिर शब्द सिर्फ कॉन्डम है, शब्द रियल नहीं है, शब्द प्लास्टिक है, फिर सिर्फ अनुभूति अनुभव सिर्फ एक्सपीरियंस के लेवल पे, फिर नॉलेज नहीं प्रज्ञा विजडम रह जाती है, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, फिर आदमी जागना शुरू हो जाता है। ये वो बात है जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं वॉर के मेटाफर से, भगवत गीत में ये वो बात है। फिर वहां पे आपको ब्रैड पिट और चक पालनुइक की बात नहीं समझ आती, फिर आपको कृष्ण का सत्य समझ आता है, फिर आपको जीसस का सत्य समझ आता है, फिर वहां बदलाव आ जाता है, फिर वहां क्रांति हो जाती है, फिर वहां पे ये हो जाता है। तो अब स्पिरिचुअल लेवल पे घुसने के लिए फिलोसॉफिकली ब्रो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें आइडिया भी पास ऑन करने के लिए, बट जिसको इस बात में हल्के से भी नथिंग, मैं बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। अगर तुम्हें ये बात सुन के लगा हाँ प्रखर शायद कुछ कह रहा है मेरे समझ नहीं आ रही, तो रीड करने से तो कुछ नहीं होना। मैंने बोला ना, नॉलेज एंड्स एंड विजडम बिगिंस। अनुभूति अनुभव प्रज्ञा, ठीक है, और वो प्रज्ञा वो विजडम आती कहां से? समाधि। समाधि मतलब सेंटर्डनेस, समाधि मतलब अवेयरनेस। बहुत डीप हो जाएगा ये, बट इफेक्टिवली तुम्हें क्या करने की जरूरत है मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूँ। जाओ 10 दिन की विपश्यना बुक करो धम्म.org पे। मैं इंडिया का नंबर 1 विपश्यना इन्फ्लुएंसर हूँ, जस्ट सो दैट पीपल नो। मैं चाहता हूँ सब आदमी विपश्यना जाए, बिकॉज इट इज़ द ड्राइएस्ट कोल्डेस्ट मोस्ट डायरेक्ट मेथड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या होता है विपश्यना में जिनको नहीं पता? 10 दिन आप साइलेंस में विदाउट स्टिमुलस, सो नो फोन, नो टीवी, नो रीडिंग राइटिंग, नो टॉकिंग, नॉट इवन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। 10 दिन आप सन्नाटे में बैठते हो और आप सीखते हो आध्यात्म, अंदरमुखी होना, टू लुक इनसाइड, टू वेक अप, टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। यू बिगिन टू लर्न इन दैट साइलेंस। धर्म की आवाज सुनाई तब देती है जब सन्नाटा आता है, जब अकेलेपन में ही धर्म दिखता है, भीड़ में सिर्फ झूठ दिखते हैं। मॉब बिहेवियर, सिर्फ मॉब बिहेवियर, भेड़ चाल, उसने किया इसलिए कर लेता हूं, उसको सक्सेस चाहिए इसलिए कर लेता हूं, उसकी आंखों से मेरे को, मैं ईशान की आंखों में देख के बोलूं
प्रखर क्या बंदा है, क्योंकि ईशान सोचता है प्रखर क्या बंदा है, और इसमें मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं जब ईशान ही कोई बंदा नहीं है। Right. मैं क्या गरीबों की आंखों में अमीरियां ढूंढ रहा हूं भाई? मैं क्या बेवकूफ मूर्खों की नजरों में खुद को ज्ञानी प्राप्त करना चाहता हूं? मैं क्या फायदा है उसका? ये आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब आप सन्नाटे से रूबरू होते हो, जब So आप you चुप्पी realize के this में when you. you begin the process, the journey begins. See, ऐसा नहीं है vipassana is the only door, like I said earlier, right? Prayer, there's many ways, right? Vipassana is the coldest, driest, it's like a boot camp, it's like an army boot camp for losing weight. There is no way that you will not see some version of truth. There is no way you will not lose some weight. दरवाजा कोई दया की तरह पैर से तोड़ के अंदर घुसने का अगर कोई तरीका है ना अध्यात्म में, तो वो विपश्यना है, सबसे डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कोई बात नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। योग भी काम करता है ऐसे, तो डाओइज्म भी काम करता है, ठीक है। लाओ त्जू की बातें डाओइज्म हो गया, गुरजीएफ की बातें काम करेंगी, बहुत मास्टर्स, जीसस की बातें काम करेंगी, हर आदमी की बात काम कर। there's been many masters if you think about it, there's been many avatars। राम की बात काम करेगी, कृष्ण की बात काम, पर तुम सुनते कहाँ हो? तुम कृष्ण की बात को लेते हो और अपने रंग में ढाल देते हो, अपनी करप्शन जस्टिफाई कर देते हो कृष्ण की बातों से। कब से इंडिया में बोल रहे हैं राम राज्य राम राज्य, हर पॉलिटिकल कैंपेन का अंडरलाइन टैगलाइन होता है राम राज्य। आया है? इंदिरा गांधी भी कह रही थी, राजीव गांधी भी कह रहे थे, संजय गांधी भी कह रहे थे। कब से कह रहे हैं राम राज्य? आता है नहीं, हम we take what these masters have said and corrupt it for our own pleasure and for our own devices. And so the most unobstructed way to arrive at spiritual, let's say the source, the Gangotri of spiritual truth is Buddha's no nonsense vipassana. उसके बाद तुम्हें कृष्ण की बात भी समझ आने लगेंगी, दुर्गा की बात भी समझ आने लगेंगी, उसके बाद तुम्हें फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम्हें जीसस की बात भी समझ में आने लगेंगी उतनी, बिकॉज जीसस इज नॉट सेइंग समथिंग रेडिकली डिफरेंट, यू नो, देन इट ऑल बिगिंस टू मेक सेंस। बुद्धा हैड द मोस्ट नो नॉनसेंस वे, बिकॉज ही वाज लाइक, अब मैं तुम्हें बैठा के समझाऊं या तुम्हें दिखा दूं। Right. कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला ना, मैं तेरे को बैठा के समझाऊं, पहले तो तू देख विराट अवतार, पहले तो तू देख और फिर सुन, फिर भगवत गीता दिया। अष्टावक्र की बात सुन लो, समझ आ जाएगी। अष्टावक्र नो नॉनसेंस है, बिल्कुल नो नॉनसेंस है, बट वो अष्टावक्र भी बात से समझाते हैं जनक को। एक स्टोरी है, अष्टावक्र गीत करके भी चलता है। तुम नीम करोली बाबा की बात सुन लो, तुम महर्षि रमन्ना की बात सुन लो, तुम योगानंद परमहंस की बात सुन लो, ये सब परमहंस हैं, ये सब सत्य बोल रहे हैं, बट तुम्हें नहीं समझ आएगा अभी, क्योंकि तुम क्या, मैं भी वेरी ऑफ्टन, यू टू लॉस्ट इन योर ओन ट्रिप, यू टू डीप इन योर ओन फॉरेस्ट। एक स्टोरी है ब्रह्म की, भगवान ब्रह्म की। कहते हैं भगवान ब्रह्म ने सृष्टि बनाई और सृष्टि को देख के मोहित हो गए, खुद ही गॉट सेड्यूस्ड बाय हिज ओन क्रिएशन, एंड देन यू नो फ्रॉम देयर और भी आगे कहानी है। बट उस बात का मतलब क्या है कि सृष्टि का, जिस बंदे ने सृष्टि बनाई, जिस भगवान की क्रिएशन थी ये, वो ही कन्विंस हो गए ये क्रिएशन रियल है। ऐसे ही हम जिंदगी जीते हैं, हम अपनी दुनिया बनाते हैं, मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, और हम कन्विंस हो जाते हैं कि ये ग्रोथ रियल है, ये सक्सेस रियल है, ये प्यार रियल है। सिर्फ रियल एक चीज़ है जो मैं बता चुका हूँ इस पॉडकास्ट में, जो लोगों को याद है, जो तेरे को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, You're going to die. मृत्यु। उसको नहीं देखना चाहते, उसके बीच में ग्रोथ आ जाए, उसके बीच में सक्सेस आ जाए, उसके बीच में प्रतिष्ठा आ जाए, पद आ जाए। समझ रहा है ना, सारी हिंदी बात समझ में आ रही है ना, लैंड हो रही है ना, हाँ। उसके बीच में ये सारे गुणगान आ जाए, ये सारे मंत्र जंतर आ जाए, बस ये ना ऐसा। तो फिर what matters in life for you? मस्ती, मस्ती, नशा, खुमार, समझता है ये बात? खुमार क्या होता है? नशा मतलब एक द मेटाफर आई प्रेफर टू यूज हियर इज ऑफ, क्या नाम है उनके, शिव का एक अवतार होता है ना, जो शिव के वो कौन से अवतार होते हैं जो डांस करते हैं, पता है? नटराज, नटराज, ठीक है। सो लुक एट डांसिंग इज अ मेटाफर। डांसिंग इज प्रॉबेबली द ओनली आर्ट फॉर्म वेयर द डांस एंड द डांसर आर वन। आर्ट में तू यहाँ पेंट कर रहा है, ठीक है, तू म्यूजिक में गा रहा है, गाना यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। डांस में तू और डांस एक ही है, वो आंसर है। जब तुम ऐसे हो कि हो भी नहीं और हो भी, when you are such that you are the dance as well as the dancer, that is the essence। और वो आता है बचपन की मस्ती से। तेरे को अगर पता हो, क्रिकेट खेलने में पता ही नहीं लगा शाम हो गई,
बस सिद्ध हो गए भाई, उस शाम तुम सिद्ध हो गए, उस शाम तुम जगे हुए थे। फिर धीमे धीमे चिंताएं आ गई, फिर धीमे धीमे अड़चने आ गई, फिर तुम सो गए और फिर तुम भूल गए उठते भी कैसे हैं। ये है। तो द आंसर इज मस्ती। और मस्ती मतलब ये नहीं कि 35 साल के हो गए हैं, दारू में पिए जा रहे हैं उल्टी करने के लिए। क्यों पी रहा है आदमी? 35 साल का आदमी इतनी दारू